Assalamu alaikum everyone and welcome to the pharmacology lecture number 20. My name is Muhammad Ali Haider and thank you everyone who subscribed to my channel. I got maximum subscription to this channel due to the pharmacology lectures. So thank you again. Let's dive in. Today we will discuss about cyclic guanosine monophosphate, also known as CGMP. Unlike cyclic AMP that we discussed in our last lecture, the unambitious and versatile carrier of diverse messages, cyclic GMP has established signaling roles in only a few cell types in intestinal mucosa and vascular smooth muscles. The cyclic GMP based signals transduction and mechanism closely parallels the cyclic EMP mediated signaling mechanism. Ligands detected by cell surface receptors stimulates membrane-bound guanine cyclase to produce cyclic GMP, and cyclic GMP acts by stimulating a CGMP-dependent protein kinase. The action of CGMP in these cells are terminated by enzymatic degradation of the cyclic nucleotides and by dephosphorylation of the kinase substrate. तो बेसिकली वो बता रहा है कि साइक्लिक ईएमपी जो कि हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया एक बहुत वर्सटाइल कैरियर किस्म का एक मैसेंजर है जो कि साइक्लिक जीएमपी जो है वो मुख्तलिफ ओनली फ्यू सेल्स टाइप में जो है वो रोल प्ले करता है जैसा कि टाइनल मिकोसा में और वास्कुलर स्मूथ मसल्स में जहाँ पे सीजीएमपी जो है वो अपने मैकेनिज्म्स को जो प्रोड्यूस करता है और जो सिग्नल्स होते हैं वो साइक्लिक ईएमपी मेडिएटेड सिग्नल मैकेनिज्म की तरह के होते हैं। ये सेल रिसेप्टर्स पे जो है वो लिगनेंस को डिटेक्ट करता है और फिर स्टिमुलेट करता है मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेनुलाइन साइक्लेज को जो कि सीजीएमपी प्रोड्यूस करते हैं। और सीजीएमपी पे जो है वो स्टिमुलेट करता है सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। और जो साइक्लिक जीएमपी का इन सेल्स में जो एक्शन है वो किस तरह डिग्रेड होता है कि जब एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स की जो कि काइनेज सबस्ट्रेट की डिफॉर्मेशन से होते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि जो बेसिकली जो सीजीएमपी है वो ओनली फ्यू सेल्स टाइप में ट्रैक्ट करती है जिसमें मेंटेन मिकोजा है या वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और इसका जो एक्शन है वो ज़्यादातर साइक्लिक ईएमपी से मिलता जुलता एक्शन है। और इसमें जो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से इसका जो एक्शन है वो ब्रेक डाउन होता है। तो increase CGMP concentration. जब आप increase CGMP concentration causes relaxation of muscular smooth muscles by kinase mediated mechanism that results in deforestation of the myosin light chains. In these smooth muscle cells, cyclic GMP synthesis can be elevated by two transmembrane signal mechanism utilizing two different granulized cyclases. Atrial nucleotic peptide, a blood-borne peptide hormone, stimulates a transmembrane receptor by binding it to extracellular domain, thereby activating the guanine cyclase activity that resides in the receptor's intracellular domain. साइक्लिक जीएमपी जैसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इसकी वजह से वास्कुलर स्मूथ मसल्स में जो काइनेज मेडिएटेड मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है और जिसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन्स की डिफॉस्फोराइजेशन होती है। अब इन स्मूथ मसल्स में जो साइक्लिक जीएमपी की सिंथेसिस है वो दो ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग मैकेनिज्म की वजह से होते हैं जो कि दो दो डिफरेंट ग्रेनुलाइल साइक्लिसेस को यूज करते हैं। अब जो एक ब्लड बॉर्न पेप्टाइड हार्मोन है वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। वो किस तरह करता है स्टिमुलेट के वो अपने आप को एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में बाइंड कर जाता है और वहाँ पे वो ग्रेनुलाइन साइक्लेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है जो कि रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर डोमेन में पाए जाते हैं। अब response to nitric oxide. The other mechanism mediates response to nitric oxide, which is generated in the vascular endothelial cells in response to natural vasodilator agents such as acetylcholine and histamine. After entering the targeted cell, nitric oxide binds to and activate a cycloplasmic granule cyclase. A number of useful vasodilating drugs such as nitroglycerin and sodium nitro side used in treating cardiac
ischemia and acute hypertension act by generating or mimicking nitric oxide. Other drugs produce vasodilation by inhibiting specific phosphodiesterase, thereby interfering with the metabolic breakdown of cyclic GMP. One such drug is sildenafil, used in treating erectile dysfunction and pulmonary hypertension. तो अदर मैकेनिज्म जो कि रिस्पॉन्स नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है वो वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में जनरेट होते हैं जो कि वेजोडाइलेटर एजेंट्स को की वजह से ये सारे जनरेट होते हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन है और हिस्टामीन है। अ, जब ये टारगेट सेल्स में जब ये एंटर होते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है साइक्लोप्लाज्मिक साइक्लेस को। और नंबर ऑफ यूजफुल वेजोडाइलेटिंग जो ड्रग्स जिसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन है और सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड यूज जो कि कार्डिक एसीमिया में और एक्यूट हाइपरटेंशन में यूज होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोफॉस्फाइड। और ये क्या करती हैं? जनरेटिंग और या फिर ये उस नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करती हैं या फिर उस जैसा एक्ट करती हैं। अदर ड्रग्स जो कि वेजोडाइलेशन को प्रोड्यूस करती हैं वो एक स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस को इनहिबिट करती हैं और इसके ज़रिए से वो साइक्लिक जीएमपी की मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन के साथ इंटरफेयर करते हैं। और इस तरह की जो ड्रग जो इस मैकेनिज्म को यूज़ करती है उसका नाम सिनेनल है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। तो बेसिकली आपने सिनेनफिल का काफ़ी नाम सुना होगा जो कि बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी यूज़ होती है। So thank you very much for your precious time. Do subscribe to my channel. Do watch these um, um, very important pharmacology lectures. Take care. Allah Hafiz.